الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تنہا اکیلا اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی کمالات اور ارادات میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو، جن کی محنت مشقت کی وجہ سے اسلام گھر گھر تک پہنچا ہے۔ حاضرین، آج وہ مبارک دن ہے، یا وہ خوشی کا دن ہے، وہ مسرت کا دن ہے، جہاں پہ ہم نے ایک مہینہ رمضان کے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ آج کے دن ہمیں وہ انعام و اکرام سے اور تحفے تحائف سے اللہ ہمیں نوازتا ہے۔ آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے غریبوں کی ہمدردی کا دن، مسکینوں کی غمخواری کا دن، بیواؤں کے سہارا کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے محبتوں کا دن، الفتوں کا دن، بے یار و مددگار لوگوں کا دن، سہارا دینے والوں کا دن ہے۔ آج اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ پیغامات یا کچھ باتیں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ بات بتا دوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا جان لو، یہ دنیا کیسی ہے ذرا جان لو۔ کیا ہے دنیا؟ کہا اللہ نے لعب ولہو، کھیل تماشا ہے، وزینہ، ایک رونق ہے، وتفاخر، فخر کرنے کی جگہ ہے، وتکاثر، ایک دوسرے کو یہ جتانا، یہ بتانے کی دنیا ہے کہ ہم اولاد والے، ہم مال والے۔ یہ دنیا اس طرح سے ہے کہ کسان اپنی پوری تیاری کے ساتھ فصل کو اگاتا ہے، لیکن فصل سے منافع اٹھانے سے پہلے، اس فصل کو حاصل کرنے سے پہلے وہ فصل ختم ہو جاتی ہے، چورا چور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے۔ اللہ نے کہا آخرت کیسی ہے؟ آخرت بہت بڑی ہے، اور اس کے اندر جو عذاب ہونے والا ہے سخت عذاب ہونے والا ہے۔ آخر میں اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا غداری کی جگہ ہے، یہ بے وفائی کی جگہ ہے۔ اسے محبت مت کرو، اس دنیا سے اتنا ہی یوز کرو جتنا ضرورت ہے۔ اگر حد سے زیادہ محبت کرو گے، حد سے زیادہ وفاداری کرو گے تو یہ غداری کرے گی، یہ بے وفائی کرے گی۔ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آج دیکھو دنیا ہمارے سامنے مختلف شکل لے کر آ رہی ہے، کبھی مال کی شکل لے کر آتی ہے، کبھی مال کی شکل لے کر آتی ہے۔ تو قارون کو دیکھو، اللہ نے قارون کا کیا انجام کیا ہے۔ اگر دنیا اگر مال کی شکل میں آئے تو قارون کو دیکھنا، تخت و تاج کی شکل میں آئے تو فرعون کو دیکھنا۔ اگر دنیا حسن و جمال کی صورت میں آ رہی ہے تو ان حسیناؤں کو جا کر پوچھو جو قبروں میں دفن ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا عیش و عشرت کی جگہ ہے، دنیا عیش و عشرت کی صورت میں آ رہی ہے، اس چیز میں آ رہی ہے، ان محلوں سے جا کر پوچھو، ان بادشاہوں کے کھنڈرات سے جا کر پوچھو۔ آج جو ویران ہے، آج کیا ہے؟ ویران ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ دنیا کو دل لگانا نہیں، اس اتنا ہی استعمال کرو جتنا ضروری ہے۔ اگر حد سے زیادہ استعمال کرو گے، یہ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے وبال جان بنے گی۔ اس حدیث کو بھی یاد کرو،
जिस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम जा रहे थे, सामने एक आदमी मरी हुई बकरी पकड़ कर लेकर आ रहा था, मरी हुई बकरी पकड़ कर लेकर आ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से पूछा, ऐ सहाबा, क्या तुम इस बकरी को लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, 1 रुपए में भी नहीं लेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फ्री में ले लो, फ्री में भी नहीं लेंगे। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा, क्या कहा? अहवन अलैहि मिथल दुनिया, इससे कहीं ज्यादा हकीर, इससे कहीं ज्यादा बेकार, इससे कहीं ज्यादा जलील तो ये दुनिया है। मेरे भाइयों, आज दुनिया की वजह से क्या हो रहा है, आज दुनिया से मोहब्बत की वजह से क्या हो रहा है? आज हमारी नमाजें बर्बाद हो रही, हमारा दीन बर्बाद हो रहा है, हमारा जिक्र बर्बाद हो रहा है, हमारे कुरान मजीद की तिलावतें बर्बाद हो रही, हमारे दुआएं बर्बाद हो रही। आदमी पहले कमाने के लिए जाता, बाद में ये सोचता कि अल्लाह का जिक्र करना है। पहले कमाने के लिए जाता, बाद में ये सोचता कि नमाज़ें पढ़ना है। हमारे कानों में आवाज आ जाती है अजान की, लेकिन हमारे पास काम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नमाजों को ही छोड़ देते। मेरे भाई, दुनिया कितने साल जीना है? क्या हमेशा हमेशा के लिए आए? क्या यहाँ हमेशा हमेशा रहने की जगह? हरगिज़ नहीं। ये दुनिया क्या है, 60-70 साल है। उन बुजुर्गों से जाकर पूछो जिनकी जिंदगी आखिरी में है, जिनकी जिंदगी आखिरी कदमों में है, जो आखिरी अय्याम गिन रहे हैं, आखिरी मराहिल गिन रहे, उन लोगों से जाकर पूछो तुम्हारी जिंदगी से क्या तजुर्बा है। मेरे भाई, वो यही कहेंगे जरूर कि भाई हमने कुछ पाया नहीं, कुछ किया ही नहीं। अगर हमने जो नेक अमल किया वही आज हमें साथ दे रहे। तो मेरे भाइयों, गुजारिश की जा रही, दुनिया की मोहब्बत में इतना भी मत गिर जाओ कि अपने आप को खो दो, इतना भी मत गिर जाओ कि अपने आप को जलील कर लो। आज दुनिया को कमाने के हिर्स में आदमी क्या क्या नहीं कर रहा जी। हलाल भी नहीं देख रहा, हराम भी नहीं देख रहा, खराब भी नहीं देख रहा। भाई पैसा सिर्फ पैसा ही चाहिए। मेरे भाइयों, सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ दुनिया नहीं होती। इस दुनिया के अलावा, इस पैसे के अलावा और भी है। अल्लाह के पास पैसे से तोला नहीं जाएगा, हमारी नमाजों से तोला जाएगा, हमारे जिक्र से तोला जाएगा, हमारी इबादत से तोला जाएगा। हमें गौर करना है, हमें सोचना है हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे भाई, इसके मुकाबले में आखिरत को देख लो। आखिरत ना खत्म होने वाली जिंदगी, जिसके अंदर क्या है, यन बोल के नहीं है, जिसके अंदर यन बोल के नहीं है। आप लोग उसके लिए तैयारी करो, ये सोच के इस दुनिया को गुजारो कि भाई मुझे एक ना एक दिन अल्लाह के सामने जाना है, वहां खड़े होकर जवाब देना है। हर चीज के बारे में अल्लाह पूछेगा, वो सारी चीजों के बारे में मुझे बताना है। तो मेरे भाइयों, ये दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह जब तक हम रहे कि दुनिया के धोखे में ना आए और हमारा आखिरत आसान से गुजर जाए। मेरे भाइयों, असल में कामयाबी कौन सी कामयाबी? क्या बंगला बनाना कामयाबी है? गाड़ी खरीदना कामयाबी है? कारों पर कारें खरीदना कामयाबी है? क्या आदमी अच्छा एजुकेशन वाला हो जाए, अच्छा पैसा वाला हो जाए कामयाबी? हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। कुरान क्या डिफिनेशन बताता है, कुरान क्या डिफिनेशन देता है कि कामयाबी किसे बोलते? आज आदमी क्या कर रहा है मालूम? पैसे कमा लिया, दुनिया कमा लिया, तो अपने कादर को ऊंचा कर रहा, कह रहा है कि हम ही दुनिया में कामयाब। हरगिज़ नहीं। कुरान किसे कहता है कामयाब? कहा कुरान ने, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत के अंदर दाखिला किया गया, वही आदमी कामयाब है। तो मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र करो, जहन्नम की फिक्र करो, जन्नत के अंदर जाने की फिक्र करो। अगर ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ दुनिया 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 बोलते रहोगे, एक ना एक दिन ऐसा लात मारी गई दुनिया कि हमारा कभी भी ये साथ देने वाली नहीं। मेरे भाई, ये पहला मैसेज और पहला पैगाम है आज का। दूसरा पैगाम खास करके नौजवानों से मेरा पैगाम है, आप वो ताकत है मेरे भाइयों कौम की, वो कुव्वत है, आप नौजवान और ताकत है। आपको मालूम है आपकी ताकत क्या है, आपका पावर क्या है मालूम? अल्लाह ताला को आपकी इबादत बहुत ज्यादा पसंद है, अल्लाह ताला को आपकी नमाजें बहुत ज्यादा पसंद है। नौजवानों, चाहे वो नौजवान लड़के या लड़कियां, आपकी इबादतें अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, आपके सज्जे अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। उस हदीस को भी याद करो, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो आदमी अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है, कल कोई क़यामत में कोई साया नहीं होगा, सूरज हमारे सरों पर खड़ा होगा, सूरज हमारे सरों पर खड़ा होगा। ऐसे वक्त में वो नौजवान जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार रहा है, अल्लाह उसे अपने अर्श के साये में जगा देगा। मेरे, ये आपकी वैल्यू है, आप अपनी वैल्यू को समझो। किसी आदमी ने बड़ा बेहतरीन जुमला कहा जी,
अगर आदमी अपनी जवानी में सुधर गया ने, वो कौम का लीडर बन जाता है, वो कौम का लीडर बनता है, वो कौम का हेड बनता है। अगर आदमी वही अब बुजुर्ग के वक्त में या बड़ी उम्र के वक्त में अच्छा बनेगा ना, तो उसका अपने हद तक अच्छा रहेगा। अगर वही आदमी नौजवानी में अच्छा बन जाएगा तो कौम का लीडर बनेगा। याद करो असहाबे काफ, गार वाले नौजवानों को, वो गार वाले नौजवानों को याद करो। वो चंद नौजवान थे जो बादशाह के सामने क्या कहा, कालू रब्बुना नदू, कहा कि हमारा रब वो है जो तू नहीं, अल्लाह है हमारा रब। मेरे भाइयों, इब्राहिम को याद करो, वो इब्राहिम तो थे जो सारे माबूदाने बातिला को तोड़ा था। एक नौजवान का पूरी दुनिया को बदल के रख दिया था। आज हमारी नौजवानों की क्या हालत है जी? हमारी नौजवान, अल्लाह अकबर, हमारी नौजवान लड़कियां या लड़के अपने जिस्म को संवरने में लग गए, अपने बालों को सवर करने में लगे, अपने जुब्बों को, अपने पैटों को, अपने टोजरों को संवरने में लग गए। आए लोगों, आए नौजवानों, तुम्हारी उम्र इसके लिए नहीं रखा अल्लाह ताला। तुम्हारी नौजवानी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा अहम है। तुम्हारी एक एक मिनट, एक एक सेकंड। आज हमारे नौजवानों का हालत यह है कि औरत के फितने में मुब्तला हुआ है। वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत करना था, अल्लाह के सामने खड़ना था, दुनिया को हिला कर रख जाना था, दुनिया को आगे लेकर जाना था। मेरे भाइयों, आज जाकर देखो, कहीं भी आपने ऐसा उन्वान देखा है, कहीं भी आपने ऐसा उन्वान कि बुजुर्गों की तरबियत, बुजुर्गों की इस्लाह नहीं देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि नौजवानों की इस्लाह कैसे करना, नौजवानों की तरबियत कैसा करना, नौजवानों को कैसे अच्छा करना। मेरे भाइयों, हर कौम का आदमी, हर कौम का बड़ा से बड़ा आदमी, बड़े से बड़े आलिम यही फिक्र करता है कि मेरी कौम का नौजवान सही हो जाए, मेरी कौम का नौजवान सही हो जाए। वो सारे लोग ही, आज पूरी दुनिया नौजवानों पर टिकी हुई, पूरी दुनिया नौजवानों को देख रही कि नौजवान अगर सुधर गया, मेरे भाइयों, पूरी दुनिया को सुधार कर रखेगा। अगर वही नौजवान खराब हो गया, वही नौजवान अगर खराब हो गया, हमारे दीन को बर्बाद करेगा, पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखेगा। कितने ऐसे वाकयात नहीं हुए वो नौजवान जो खराब हो गए, पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, अपनी जिंदगी को और औरों की जिंदगी को। तो इसीलिए गुजारिश की जाती, नौजवानों, अपने आप को समझ लो, अपने आप को समझो। ये आज की दुनिया धोखे की दुनिया, आज की दुनिया रंगीन दुनिया। आज हमारा नौजवान हाथ में मोबाइल रहता है, सामने व्हाट्सएप रहता है, फेसबुक रहता है, ये औरत के फितने में मुब्तला हुआ है। वहां नौजवान लड़कियां मोहब्बत के फितने में मुब्तला हुई। हो रहा क्या मालूम है? माँ बाप से बगावत, माँ बाप से बगावत, दीन से बगावत करके भाग रही है। ये नहीं देख रही कि मेरा मैं किससे शादी कर रही, किससे मोहब्बत कर रही है, नहीं देख रही, बल्कि मोहब्बत कर ली बस, और ये कह रही है कि भाई हमने क्या, जो भी क्या सच किया। मेरे भाइयों, नहीं, हरगिज नहीं। ये बात अच्छी तरह से याद रख लो, नौजवानों, तुम्हारी अहमियत बहुत ज्यादा है, तुम्हारी कदर अल्लाह के पास बहुत ज्यादा है। उस नौजवान को भी याद करो जी, जो 2018 के अंदर अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा पैसा एक पूरी खैल अहले हजरात यानी हमदर्द लोगों में बांट दिया था। वो नौजवान को याद करो जो ऑस्ट्रेलिया का था। तो मेरे भाइयों, गुजारिश की जाती है, नौजवानों उठो, तुम लोग सोने की जगह है। अगर तुम लोग सो गए तो कौम सो जाएगी, तुम लोग जाग गए तो पूरी कौम जागेगी। तुम्हारे पास वो चीजें हैं। एक और पैगाम जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, बहुत अहम है मेरे भाई, दावत का काम किया करो, दावत का काम किया करो। लोगों को शिर्क से बचाओ, लोगों को तौहीद पर लेकर आओ, बिदात से बचाओ, खुराफात से बचाओ, बुराई से बचाओ, नेकी का हुक्म दो। ये जरूरी है। क्यों मालूम? अपने आप को बचाना है ना, अपने आप को जिंदा रखना है ना, अपने आप को इस हिंदुस्तान में जिंदा रखना है तो दावत का काम करना पड़ेगा। ये मेरी बात नहीं, ये अल्लाह की बात है। अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह बचाएगा तुम लोगों को। कैसे बचाएगा? जब आप लोग दावत का काम करेंगे, लोगों को भलाई की तरफ बुलाएंगे, बुराई की तरफ से रोकेंगे। जब एक काम शुरू करोगे, अपने आप को बचा लोगे इन लोगों से। मेरे भाई, आज हाल क्या हो रहा मालूम? आज हमारी हालत, हमारे बारे में ऐवानों में, पार्लियामेंटों में हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही, खुल्ला जजमेंट आ रहा है कि मुसलमानों को खत्म किया जाना चाहिए, मुसलमानों को कुछ भी नहीं, खुल्ला हो रहा है। वजह क्या है मालूम? वजह एक ही है, हमने दावत के मिशन को छोड़ दिया। अल्लाह ने जिस काम के लिए हमें भेजा था, जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें भेजा था, उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि वो काम हमने छोड़ दिए मेरे भाई।
वो काम हम छोड़ दिए जिसकी वजह से आज हमें क्या जलील हो रहे, हमें मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा है। फिर हम दुआ कर रहे हैं तो दुआ कैसे कबूल होगी मेरे बात? हरमैन में दुआ हो रही है, बैतुल मक़दिस में दुआ हो रही है, हर मस्जिद में दुआ हो रही है, लेकिन हमारी दुआओं को कबूल नहीं हो रही। क्यों मालूम? इसलिए कि हमने दावत का काम छोड़ दिया, हम एक अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ दिया लोगों को। जब बुलाना छोड़ देंगे ना, अल्लाह ताला का अजाब आएगा, और ऐसा अजाब आएगा कि इसको संभलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, गुजारिश की जाती है दावत के काम को आगे बढ़ाओ। एक और पैगाम जो आपको देना है वो ये है कि रमजान के महीने में हम नेकियां कर लिए, रमजान के महीने में हम इबादतें कर लिए, और इससे पहले भी हम नेकियां कर लिए, इसके बाद भी हम नेकियां कर लेंगे। इस नेकियों की हिफाजत करो मेरे भाइयों। नेकियां करना आसान है, नेकियां करना आसान है, लेकिन उस नेकियों को संभाल कर रखना मुश्किल है, संभाल कर रखना मुश्किल है। नमाज पढ़ना आसान, लेकिन उस नमाज को जाये होने से संभाल कर रखना यह मुश्किल है। आपको एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अतदरून मल मुफलिस? साहबा से पूछा, मुफलिस कौन है? ऐ साहबा, मुफलिस कौन है? तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुफलिस वो आदमी है जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, माल है, वो आदमी मुफलिस है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं साहबा, नहीं साहबा, मुफलिस वो आदमी है जो क़यामत में आएगा, क़यामत में आएगा, नमाज पढ़ा होगा, रोजा दिया होगा, ज़कात दिया होगा, हज किया होगा, सारी नेकियां किया होगा, लेकिन साथ में क्या करे होगा मालूम? किसी को गाली दी होगी, किसी को गाली दिया होगा, किसी का माल नाहक खाया होगा, झूठ बोला होगा, ग़ीबत किया होगा। ऐसा आदमी आएगा क़यामत के दिन, अल्लाह ताला उसके सारे नेकियां उठाकर जिन जिन को उसने सताया है उसको देगा, जिन जिन का उसने माल हक नाहक माल खाया है उसको देगा, जिस जिसको गाली दिया है उसको अल्लाह ताला देगा, जिस जिसको वो ग़ीबत किया है अल्लाह ताला उसको देगा, और ये सारी नेकियां क्या है? बर्बाद हो जाएंगे। जो आदमी जन्नत की तरफ जा रहा है वही आदमी क्या है? जहन्नम की तरफ फेंक दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, गुजारिश की जाती है कि जो नेकियां आपने किया है, जो नेकियां आपने किया, उसे संभाल कर रखना, उसकी हिफाजत करना, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना कि अल्लाह हमारी नेकियों की हिफाजत फरमा, हमारी नेकियों की हिफाजत फरमा। हम क्या समझ रहे मालूम? हम ये समझ रहे कि भाई नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह लिख लिएगा, अमल नामे में लिखेगा। नहीं होगा मेरे भाइयों, इसकी हिफाजत करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, जरूरी है। अगर हमने हिफाजत नहीं किया तो क्या होगा? अल्लाह ताला हमारे सारी नेकियों को बर्बाद करेगा। एक और पैगाम है, वो पैगाम ये है मेरे भाइयों, दीन में साबित कदम से रहो, कितने भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितने भी हालात खराब क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कितने भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन ये बात अच्छी तरह से याद रखो, दीन पर साबित कदम रहो, दीन पर जमे रहो, दीन को हरगिज मत छोड़ो। आज क्या हो रहा मालूम? थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, हम दीन को बेच रहे हैं। दीन को क्या बेच रहे? अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। अल्लाह ने कहा कि बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह को रब माना, अल्लाह को रब मानने के बाद अल्लाह ताला कहता है उस दिन पर मजबूत रहे, उस दिन पर जमे रहे, तो फरिश्ते आसमान से आकर उनको खुशखबरी देंगे, जन्नत की खुशखबरी। तो मेरे भाइयों, हालात कितने भी खराब क्यों ना आ जाए, परेशानियां कितने भी क्यों ना आ जाए, आप लोगों से गुजारिश है कि दीन पर जमे रहो, दीन पर साबित कदम रहो। हालात कितने भी मुश्किल, आपको मारा भी जाए, भाई हम दीन से नहीं हटेंगे। एक वाकया बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। वो क्या है मालूम? अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत जलील कद्र साहबी थे, बहुत जलील कद्र साहबी। उनको एक रूमी बादशाह ने पकड़ लिया, उनको एक रूमी बादशाह ने गिरफ्त कर लेकर गया। मेरे भाइयों, उनको तरह तरह की मुसीबतें दिया, तरह तरह की तकलीफें दिया, यहाँ तक के उनको उल्टा लटका कर इतना मारा कि जिस्म से सिर्फ खून ही खून निकलने लगा। उनके सामने खोलता हुआ तेल में दो मुसलमानों को जलाकर राख कर दिया। अब्दुल्ला बिन रवाहा रोने लगे, अब्दुल्ला बिन रवाहा रोने लगे। बादशाह समझा कि अब्दुल्ला थोड़ा सा थम गया है, थोड़ा सा थम गया है, शायद वो ईसाइयत के अंदर आना चाहता है। जाकर पूछता है बादशाह, क्या अब्दुल्ला क्यों रो रहे हो, क्या ईसाइयत के अंदर आना चाहते हो? मेरे भाइयों, जुमला सुनो। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि मेरे पास अगर इस तरह के 100 जाने होती तो मैं 100 जाने को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता,
لیکن ہرگز تیرے دین پر نہیں آتا۔ میرے بھائی اتنا سننا تھا، اس نے ان کو جیل خانے میں بھیجا، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، حرام گوشت ان کے سامنے لا کر رکھ دیتا، اور کئی دنوں تک وہ بھوکا رہتے تھے لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو آج ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم دین کو چھوڑیں۔ واللہ دین پر رہو گے، دین پر ثابت قدم رہو گے، دیندار بن کے رہو گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم دیندار نہیں بنو گے، اللہ ہمیں ختم کر کے رکھ دے گا، نیست و نابود کر کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، ان تمام باتوں کو یا ان تمام کاموں کو ہمارے لیے قبول فرما۔ اللہ جو عبادتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہیں وہ ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیری عبادت کر رہے، تیری بزرگی بیان کر رہے، اے اللہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں اور جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پریشان ہیں، اللہ اے اللہ ہم پریشان ہیں، مصیبت میں اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے، اللہ اے اللہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کر دے، اللہ اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، بدعت سے بچا، خرافات سے بچا، اے اللہ توحید والا بنا، توحید والا بنا، جب تک ہم رہے اللہ دنیا کے اندر ایمان والا بنا کر زندہ رکھے، اللہ اے اللہ ہم جہنم سے آزادی مانگتے ہیں، اللہ اے اللہ رمضان کے مہینے میں عبادت اسی لیے کی ہے کہ تو جہنم سے آزاد کروائے گا، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کروا دے، اللہ اے اللہ جنت کے اندر داخلہ کر دے، اللہ اے اللہ ہم بے سہارا ہے، اللہ اے اللہ ہم بے سہارا ہے، اللہ بے یار و مددگار ہے، اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ اے اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ مسلمان مارا جا رہا ہے، اللہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اللہ مسلمان طرح کی مصیبتوں میں ہے، اللہ اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اللہ ننھے سے بچے تڑپ رہے، اللہ ننھے سے بچوں کی ضرورت ہے، اللہ تیری اے اللہ تیری مدد چاہیے، اللہ اگر اللہ تو مدد نہیں کرے گا تو اس دنیا کے اندر کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ اے اللہ اگر تو رحم نہیں کرے گا تو اس دنیا کے اندر کوئی اور رحم کرنے والا نہیں ہے، مالک تو ہم کو رحم کر دے، اللہ تیری مدد ضرورت ہے، اللہ اے اللہ ہم گنہگار ضرور ہے، اللہ ہم کو دعا کرنا نہیں آتا ہے، اللہ پھر بھی ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔